And first, for giving his introductory remarks and setting the context of the whole webinar and the series that we are conducting, I would invite Dr. Anil Kumar Gupta, sir. He's the professor and head of ECDRM division and the director of Center for Disaster and Health at National Institute of Disaster Management, New Delhi. Over to you, sir. Thank you, Atisha. I welcome all the panel experts on board. I think this is the fourth one. Atisha, am I correct? This is the fourth, and I'm very happy and feel satisfied that a lot of viewership, lot of people are taking interest in this webinar. They are viewing later also on YouTube. It means that we are really able to do a bit in developing awareness towards preparing and responding to heat wave. Before I say a few words, it would be pertinent to have a round of introduction. So myself, Anil Gupta, as Atisha already introduced me. I work with National Institute of Disaster Management and also looking after the health portfolio, climate change portfolio, and emergency response. So I would request other panelists if they can briefly introduce. Over to Atisha. First, you can introduce, and then others also. Thank you, sir. So I am Atisha Sood. I'm a consultant working at the Center for Disaster and Health at National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. Thank you. Over to you, Jugal. Dr. Jugal Kishore. I'm Director Professor and former Head of Community Medicine in Vardhman Mahavir Medical College. I'm now started this Center for Excellence in Public Health Emergency and Disaster Management. And I'm fortunate to be part of NIDM for a long period and continue to be, a strong supporter. Thank you. Thank you, Rasel. So over to. Good afternoon, everyone. Thank you for joining. Very warm welcome and thank you for having me as a part of the series. I have been very closely been a part of all the work of NIDM and as a technical support to National Program Climate Change and Human Health from UNICEF India Country Office. I have been associated with building climate resilient healthcare. Very happy to also be a part of healthcare and heat prepared for children. Thank you. Thank you. Mehul Pandya ji. Good afternoon, everyone. I'm Mehul Pandya, and I'm working with All India Disaster Mitigation Institute since 2001 Gujarat earthquake. And since then, I have been a student of Dr. Anil Gupta, sir. I have been reading his publications and listening to his speeches in various webinars and trainings. And I'm really happy and delighted to share our experience of working with children and school on the important issue of heat wave mitigation. Thank you. Thank you. Dr. Vanya. Good evening, everyone. My name is Dr. Vanya Gupta. I am a PG second year student pharmacology in BPS GMC, Sonipat. And I'm here to discuss a very critical topic that affects the most vulnerable members of our society, that's newborns. And we'll see how the heat wave in India is affecting that population. Thank you. Thank you. Hannah. Then Michelle. Or we can, Hannah. Can you hear me on? Good afternoon, everyone. My name is Hannah. I work with Sphere India as a program coordinator for the Sphere India Academy platform. Looking forward for the session. Okay, so is Michelle is here? Would like to introduce? Or we move ahead. Or Fatima? Or Atisha? Yes, Fatima is here. Yes. Good afternoon, everyone. My name is Fatima. I work as a senior project associate with NIDM. So over to Atisha to take the. Thank you, everyone. Thank you Yes. for introducing, and our participants and our attendees will also get an idea of what sort of panel we have. I would request all the attendees also to introduce themselves in the chat box. Use the chat box to introduce yourself.
And meanwhile, now I would request Anil sir to give his introductory remarks and set the context for today's webinar. So I'll be very brief, and I think panelists have already started doing their job introducing the subject of today. And very important, this is the most vulnerable sections of our society, children, and children of different age, and they have different engagements, different roles being played. This is now summer season, so exams are over, new sessions have started, so they also trying to find out outing time with their friends, but that leads to, say, a different kind of exposure, and different kind of exposure not only in cities, but in small towns the exposure is different. And if the children belongs to poor community, peri-urban community, rural community, then the engagements are different, so the exposure will also be different. So the issues when we talk about the children, two dimensions: how do we look from the institutional and social aspects, and how do we look at the individual aspects? So what are the lessons from the children and young population to take care of themselves and other children, but also at the institution as a family, how do we make our children aware, how do we take care of them? So 3 or 4 points, I think. When we talk about housing, so how different kind of housing designs can affect their exposure, their impact on children. So within schools also, the designing of classrooms, the ventilation, these things will matter. Availability of drinking water, in case of something happens, what kind of first aid. So within the educational institutions, at home also. So this also leads, and but not only within the school or within the home, but when they commute. So basically, the in between, the exposure on the road, whether they go by auto rickshaw or bus or whatever means, or bicycle. Then the food. Certainly, the young people are more lured by the new food habits, like the fast food and all, which are the fast food which can really help protect, or which would not help protect. So how do we understand? So how to influence their understanding about the choices of food so that they can sustain the impact of heat. Clothing. So how fashion and the heat protection in clothing can really match. I think these are also a point, and very important point. I have seen in Hyderabad or Telangana, people wearing the synthetic clothes in hot summer and then feeling like burnt. So how do we address that? And the last point, that how to keep ourselves highly hydrated. So what amount of water, and how do we really make it available? How to improve our habits so that water is always available? So these are the 3-4 points which come to my mind, but there are several other dimensions, and speakers will certainly touch upon those. Professor Jugal Kishore is here. So almost a long journey of almost 2 decades working with Professor Jugal Kishore on various fronts. Very happy to have other speakers. UNICEF is always a long-time partner. So let us listen to our experts, and उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये विषय सबको बहुत पसंद आएगा, और इसको हम जो भी आज बात हो रही है उसमें जो बातें आपको अच्छी लगें, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो बातें अच्छी लगें, जो काम की लगें, उनको और जितना फैलाएंगे और जितना लोगों को बात करेंगे, उसके हमारे पास लाभ और ज्यादा होंगे। और अगले 7-8 दिन अभी थोड़ी गर्मी बहुत ज्यादा रहने वाली है, पर्टिकुलरली नॉर्थ में, सेंट्रल में, तो उसको लेकर के खुद भी अपना ख्याल रखें। So over to Atisha for moving to the panel. Thank you. Thank you, sir. Thank you for setting the context. हमारे वेबिनार का क्या मकसद है और हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, ये सब हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट सेशन को मूव करूं, आई वुड रिक्वेस्ट कि सारे पार्टिसिपेंट्स इन बिटवीन सेशंस कीप हैविंग सम वाटर। तो एक सेशन से दूसरे सेशन पे जैसे ही हम मूव होंगे तो यू विल बी रिमाइंडेड कि आप पानी भी साथ साथ में पीते रहे। नेक्स्ट हमारा सबसे पहले हमारे पास पैनल में है मिस्टर मेहुल पांड्या जी। सर सीनियर एडवाइजर हैं इन DRR एंड रिकवरी एट ऑल इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। सर आज हमें बताने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग, ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ इम्पैक्ट्स एंड प्रमोटिंग हीट वेव सेफ्टी एट स्कूल एंड होम फॉर चिल्ड्रन। ओवर टू यू सर। पांड्या जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप अपने संभाषण में कुछ गुजराती के भी कुछ वाक्य बोलेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा उनमें भी कोई अगर की पॉइंट्स है, 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स जो लगे, आप गुजराती में बता सकते हैं, तो हमारे जो भाई लोग अगर वहां से भी कुछ जुड़े हैं तो उनको भी थोड़ा लाभ होगा जी।
गुप्ता जी मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, हिंदी भी यूज करूंगा थोड़ी बहुत गुजराती भी यूज करूंगा और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी यूज करूंगा। जी जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस सेशन ऑन हीट वेव प्रिपेयरनेस। और ये हमको ध्यान में रख के कर रहे हैं हम लोग बच्चों को और स्कूल्स को। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने बहुत सिंपल रखा है ताकि सभी लोग उससे रिलेट कर पाए। तो ये मेरे प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली इन द बिगिनिंग व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू हाईलाइट द वल्नरेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट हीट वेव्स, कि वो लोग कितने वल्नरेबल हैं और क्यों है, और वो जब हीट वेव आता है तो बच्चों के ऊपर क्या क्या असर होती है, हाउ दे आर इम्पैक्टेड। और बच्चों पर तो होती ही है पर स्कूल्स भी अफेक्टेड होते हैं, तो स्कूल्स के ऊपर क्या गुजरती है जब हीट वेव्स आते हैं, तो थोड़ा उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे अलावा काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर वेबिनार में जो मेरे से भी ज्यादा शायद एक्सपीरियंस्ड होंगे। पर मुझे जितना समझ में आता है हीट वेव मिटिगेशन का इश्यू, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़े स्ट्रेटेजीज कवर किए हैं मेरे प्रेजेंटेशन में, कि हम लोग ऑपरेशनली क्या कर सकते हैं स्ट्रेटेजी वाइज, एनवायरमेंटली हम लोग क्या कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं। So I'll be touching on these three important aspects of heat wave mitigation and management at the school level. And in the end, I will share 7 to 8 recommendations that are emerging from our own work and work of other partners. तो ओवरऑल मैं इसके बारे में ये मेरा प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर है और मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले Sorry, sir. Sir, can you please make your screen full? श्योर, थैंक यू। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि चिल्ड्रन क्यों ज्यादा वल्नरेबल है। तो उसके 3-4 रीजंस है, मैंने 3 कवर किए हैं यहाँ पर। एक तो फिजियोलॉजिकली वो बहुत ससेप्टेबल है, उनके बॉडीज जो है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और उनका जो एडेप्टेशन जो है जब हीट बढ़ जाता है तो उनके बॉडीज जो है वो एडल्ट के कंपैरिजन में थोड़ा हीट को एडजस्ट कम कर पाते हैं। तो दैट मेक्स देम मोर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम हीट्स। और वो उनका जो स्वेटिंग मैकेनिज्म जो है वो भी अभी डेवलप हो रहा होता है, तो वो अपने आप को बहुत जल्दी से कूल डाउन नहीं कर पाते। तो ये 3-4 फिजियोलॉजिकल रीजंस है कि वो लोग क्यों वल्नरेबल है ज्यादा हीट वेव पे। दूसरा बिहेवियरल फैक्टर्स भी है, अगर बच्चे को हीट वेव लगता भी है, गर्मी लगती भी है, तो वो किसी को बताते नहीं है, दे डू नॉट टॉक अबाउट दैट। तो एक वो रीजन है, बिहेवियरल फैक्टर्स है। और उनका जो फिजिकल एक्टिविटी जो होता है तो उसके कारण उनको ज्यादा हीट एक्सर्शन होता है, तो वो हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो भी उनको ज्यादा वल्नरेबल बनाते हैं। और दे मे ऑल्सो फॉरगेट टू हाइड्रेट देमसेल्व्स, वो पानी पीना भूल जाते हैं या अवॉइड करते हैं, खेल कूद में पड़ जाते हैं तो ज्यादा वाटर का इंटेक लेते नहीं है। तो वो भी एक रीजन है कि वो लोग क्यों ज्यादा वल्नरेबल है एक्सट्रीम हीट के पीरियड्स में। और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, जैसे स्कूल एनवायरमेंट जो है, अगर स्कूल एनवायरमेंट में वेंटिलेशन बराबर नहीं है, प्रॉपर शेडिंग नहीं है वेटिंग एरियाज में, तो वो भी क्या होता है, उसके कारण भी बच्चों को ज्यादा असुरक्षित सा महसूस होती है और वो लोग फील करते हैं ज्यादा हीट को। और आउटडोर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ हीट वेव्स ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर्स। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो कुल मिला के बच्चों को ज्यादा वल्नरेबल बनाते हैं। दूसरा, उनके ऊपर ये असुरक्षित तो है ही बच्चे, और उनके ऊपर जब हीट वेव आता है तो क्या इम्पैक्ट रहता है, वो कैसे अफेक्टेड होते हैं। तो एक तो ऑब्वियस रीजन है कि भाई हेल्थ इम्प्लीकेशंस आते हैं, वो डिहाइड्रेशन होता है, हीट स्ट्रोक उनको लग जाता है। और अगर किसी बच्चे को या बच्ची को पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है जैसे अस्थमा है, तो ये एक्सिबरेट करता है हीट वेव के पीरियड के अंदर। और दूसरा, उनका लर्निंग भी अफेक्टेड होता है, हीट कैन इम्पेयर लर्निंग ऑल्सो, and overheated classrooms may also lead to reduced academic performance। हमने वो भी देखा है और काफी सारे रिसर्च ने वो पॉइंट आउट किया है कि उससे परफॉर्मेंस भी बच्चों का डाउन जाता है अगर गर्मी ज्यादा होती है तो। और पुअर न्यूट्रिशन, ये इश्यू तब आता है जब पेरेंट्स जो है वो काफी गरीब परिवार से आते हैं या फैमिलीज में से आता है,
और उनको वो न्यूट्रिशनल मील्स प्रोवाइड नहीं कर पाते अपने बच्चों को। हीट वेव जब आता है तब प्राइसेस भी बढ़ते हैं फूड कमोडिटीज के, और दूसरा भी स्कूल्स भी बंद होते हैं, तो उन बच्चों को जहाँ से वहाँ से वो जो सप्लीमेंट मिलता है तो उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो एक इंक्रीज टेम्परेचर्स के कारण बच्चों के माल न्यूट्रिशन पर भी असर पड़ता है और बच्चों का भूख भी मर जाता है, ऐसा हमको स्टडीज ने बताया है। तो एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक उसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर हीट वेव के कंडीशंस में। अब बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट जो था उसका हमने बात किया। अब स्कूल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है, तो एक तो स्कूल्स के जो क्लासरूम्स होते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो लैक ऑफ एडिक्वेट कूलिंग सिस्टम कैन लीड टू ओवरहीटेड क्लासरूम्स विच इम्पैक्ट द एजुकेशन, और बच्चों का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी उससे कम हो जाता है। और हीट स्ट्रेस अफेक्ट्स कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी एंड कंफर्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ। सिर्फ बच्चों के ऊपर असर नहीं होता है पर टीचर्स के ऊपर भी उसका असर रहता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो भी थोड़े बहुत जहाँ पर ज्यादातर गरीब बच्चे जाते हैं वहां पर इतने कूलिंग इक्विपमेंट्स या फैसिलिटीज नहीं होते हैं वहां पर जो भी थोड़े बहुत होते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है ड्यूरिंग द हीट वेव, और उसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है, खर्चा भी बढ़ जाता है और माल फंक्शन भी ज्यादा करते हैं ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट पीरियड। और दूसरा एक पोटेंशियल फॉर पावर आउटरेज भी हमने देखा है कि काफी जगह पर हीट वेव के पीरियड के ड्यूरिंग एनर्जी का डिमांड बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि फ्रीक्वेंट पावर आउटरेजेस होते हैं और जो गरीब विस्तार जो होते हैं, एरियाज जो होते हैं, वहां पर वो ज्यादा फ्रीक्वेंट रहते हैं, तो वहां पर भी बच्चों को और वो स्कूलों को ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। और हीट वेव्स के कारण आउटडोर एक्टिविटीज के ऊपर भी असर पड़ता है, जो बच्चों के ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी चीजें स्कूल्स के ऊपर भी असर करती है और स्टूडेंट और टीचर्स के ऊपर। तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी मैं सोच रहा था कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अगर करें हम लोग या लोग कर रहे हैं, तो मैंने एक एनालिसिस किया कि एग्जिस्टिंग एनजीओ क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कूल्स अपने आप खुद में क्या कर रहे हैं। तो मुझे 10 या 15 चीजें मिली जो वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, थोड़े जो है वो ट्राई कर रहे हैं करने का, और काफी सारे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनको ये शायद स्ट्रेटेजीज जो है विच आर ट्राइड एंड टेस्टेड शायद यूजफुल रहे, और आज के हमारे पार्टिसिपेंट भी ये मैसेजेस अगर कैरी करें दूसरे टीचर्स के साथ, दूसरे एनजीओ के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, बच्चों के साथ, तो शायद हमारा ये सेशन जो है वो प्रोडक्टिव रहेगा। तो एक तो ऑपरेशनल मेजर्स हमने क्या देखे हैं और स्कूल्स क्या कर रही है। तो एक तो स्कूल्स क्या कर रही है हीट वेव के पीरियड्स में, एक तो वो लोग अपना जो वर्किंग आवर्स जो है वो एडजस्ट कर रही है। अगर एक्सेसिव हीट है तो कुछ स्कूल्स तो छुट्टी भी दे देती है, और कुछ स्कूल्स जो है वो अपने टाइमिंग चेंज करते हैं। तो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है हीट वेव के संदर्भ में, अगर हमको बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, उनके लर्निंग को प्रोटेक्ट करना है। तो एक ये चीज हम लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज, हीट वेव इंक्लूजन इन स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, ये काफी हद तक हुआ नहीं है, इन थियरी है, अभी भी ऑन पेपर है, काफी सारे बात करते हैं, पर काफी सारे स्कूल्स के अंदर हीट वेव मैनेजमेंट का प्लानिंग जो होता है वो अभी तक हुआ नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा एरिया है कि हमको हीट वेव प्लानिंग को स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, और एक बहुत बड़ा एरिया है। दूसरा, पेरेंटल कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है, और बहुत सारी स्कूलों में नहीं भी हो रहा है, और ये एरिया है जो हमको स्ट्रेंथन करने का जरूरत है। और जैसे भी हो सके एसएमएस, ईमेल्स, व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन के थ्रू हमको पेरेंट्स को टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए अगर स्कूल में कोई भी चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हीट वेव कंडीशंस। और दूसरा एक एरिया है जो स्कूल्स कर रही है, वो है बच्चों को पढ़ाते हैं पर इनफॉर्मली पढ़ाते हैं हीट वेव के बारे में। तो अगर इसको थोड़ा फॉर्मलाइज किया जाए, करिकुलम का पार्ट बना दिया जाए इसको, तो शायद हम लोग ज्यादा बच्चों तक और पेरेंट्स तक पहुंच पाएंगे। तो ये थोड़े बहुत ऑपरेशनल मेजर्स है जो स्कूल्स ऑलरेडी ले रहे हैं, और हमको ये ज्यादा करनी चाहिए। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल मेजर्स क्या हो रहा है और हमको क्या ज्यादा करने का जरूरत है।
अभी उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो आ रही है वो है वाटर इश्यू आ रहा है। ऐसा नहीं है कि काफी सारी स्कूल में वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर का अवेलेबिलिटी है, पर वाटर टैप्स बहुत कम है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और स्टडीइंग देयर। तो एक बहुत बड़ा काम है जो करने लायक है, वो ये है कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्लीन वाटर ड्रिंकिंग के टैप्स बनाने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कम समय में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस कर पाए। ये हमारा लेसन था कोविड के ड्यूरिंग भी हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हैंड वॉशिंग स्टेशन है पर वो भी वहां पर टैप्स बहुत कम है, 2 या 3 ही है, और बच्चों के जो नंबर जो है वो 200-300 है, तो ये सब बच्चे कब तक हाथ धो पाएंगे? आधा घंटा तो कोई लाइन में खड़ा नहीं रहेगा। तो एक बहुत बड़ा और बहुत बहुत छोटा इश्यू है पर बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जो हमको एड्रेस करना चाहिए, जो काफी सारी जगह पर अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा, ट्री प्लांटेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। स्टेट्स भी कर रहे हैं स्कूल्स के लिए, पर उनके पास एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, तो ये सब चीजें भी हमको देखना चाहिए। दूसरा, हमको आउटडोर एक्टिविटीज जो है, जो टीचर्स को बोला जाता है करने के लिए, स्टूडेंट्स को बोला जाता है करने के लिए, उसको जो है हमको रिस्ट्रिक्ट करने का जरूरत है, स्पेशली ड्यूरिंग द हीट वेव, अलर्ट्स एंड वार्निंग पीरियड। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं एज एनवायरमेंटल मेजर्स। थर्ड सेट ऑफ मेजर्स इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स। तो कूल रूफ्स और रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स का यूज कुछ स्कूल्स कर पा रही है, पर ज्यादातर स्कूल्स में अभी भी इसका लिए बजट नहीं है और ये नहीं हो पा रहा है। हमने इन अहमदाबाद हमने थोड़ा शुरू किया है एज ऑन पायलट बेसिस, और हम लोग कुछ स्कूलों को लेके ये कूल रूफ्स का भी काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स भी यूज करवा रहे हैं, नंबर ऑफ वाटर टैप्स जो है उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसका एप्लीकेशन करें, क्योंकि आप कितने भी एसीस लगा दे, लेकिन अगर आप ट्री प्लांटेशन नहीं करेंगे, आप कूल रूफ्स का यूज नहीं करेंगे, आप रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स का यूज नहीं करेंगे, आप एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे, आप सोलर एनर्जी का यूज नहीं करेंगे, तो उससे एनवायरमेंट के ऊपर काफी बुरा असर रहेगा और ज्यादा वो बढ़ता ही जाएगा। तो हमको ऐसे मेजर्स करने चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहे और पैसिव कूलिंग को प्रमोट करें। दूसरा, वेंटिलेशन सिस्टम्स, वो भी आपने कई सारे स्कूलों में एक्सपीरियंस किया होगा कि वेंटिलेशन ही नहीं है, तो उसको कैसे स्ट्रक्चरली हम लोग एड्रेस करें और प्रॉपर वेंटिलेशन हवा मिले, ऐसा हमको देखना चाहिए स्कूल के बिल्डिंग के अंदर। और हमको ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करना चाहिए, ऑन रूफटॉप भी कर सकते हैं, स्कूल के सराउंडिंग में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स है जो हम लोग ले सकते हैं। नाउ मेरा लास्ट स्लाइड है, एंड और ये लास्ट स्लाइड इट टॉक्स अबाउट सम इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस। तो एक ये है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं, ये हमारा मतलब वो असम्पशन, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमको पता है कि स्कूल्स में हमको जाके क्या करना है, पर बहुत कम लोग स्कूल के अंदर जाते हैं और क्लासरूम के अंदर जाके वो लोग मेजर करते हैं कि भाई थर्मल टेम्परेचर कितना है। थर्मल कंफर्ट होता ही नहीं है स्कूल्स के क्लासरूम्स के अंदर। वो जब हम लोग मेजर ही नहीं करेंगे तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमको इसको मिटिगेट कैसे कर, रिड्यूस कैसे करना है। तो एक रिस्क असेसमेंट जो है वो हमको करने का बहुत जरूरत है, और स्पेशली इन स्कूल्स दैट आर वेरी पुअर, और वो ऐसे आउटस्कर्ट्स एरिया में होते हैं जहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो वहां पर हमको ये शुरुआत करना पड़ेगा। दूसरा, हमको कूलिंग डिवाइसेस इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, फैंस लगाने पड़ेंगे। एयर कंडीशन तो खैर सही सभी जगह पर पॉसिबल नहीं है, पर हमको शेडिंग से ज्यादा करना पड़ेगा, और हमको ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन का प्रोविजन रखना पड़ेगा या करना पड़ेगा। दूसरा, हमको जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमको एक्सेस टू क्लीन वाटर और वाटर फैसिलिटीज उसको एक्सपांड करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टैप्स लगाने चाहिए, और हमको प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। अब जब मैं प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट्स का बात करता हूँ तो हमको कूल रूफिंग मटेरियल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। हमको ऐसा टेक्नोलॉजीज आना चाहिए कि भाई हीट जो है वो रिफ्लेक्ट करे, ताकि बिल्डिंग जो है वो कूल रहे। हमको ग्रीन स्पेसेस डेवलप करना चाहिए हमारे कैंपस में, और हमको एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग डिजाइन के ऊपर फोकस करने का जरूरत है। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स और स्कूल स्टाफ, क्योंकि क्या होता है कि हीट वेव्स के अंदर अगर किसी को शॉक लगता है बच्चे को,
तो उसके सिम्टम्स क्या है, तो वो सिम्टम्स समझने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। अभी अच्छा सिम्टम समझ लिया, तो सिम्टम समझने के बाद में फर्स्ट एड क्या देंगे, तो उसका भी समझ होना चाहिए। और कौन सी चीजें एज अ फर्स्ट एड हमको रखना चाहिए, तो वो भी हमको थोड़ा, हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्स्ट एड किट जो है उसके अंदर थोड़ा और चीजें हमको ऐड करना चाहिए। तो उसका भी हमारे पास लिस्ट है, अवेलेबल है, एनडीएमए के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो वो भी हमको थोड़ा हमारा रिवीजन करके उसको इंस्टॉल करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल्स ही नहीं है हमारे स्कूल के पास कि भाई हीट वेव का एडवाइजरीज जब आता है स्कूल्स के पास, तो उसको पेरेंट्स के पास और दूसरे स्टाफ के साथ कैसे शेयर किया जाए इन अ टाइमली मैनर। और दूसरा कि हमको ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज में हमको हीट वेव का अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना चाहिए। और चाइल्ड फ्रेंडली जो मटेरियल्स है उसको हमको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहिए, ताकि चिल्ड्रन को पता भी चले और उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो ये थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस था जो हमने आज शेयर किया है आपके साथ। और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे चैट बॉक्स के अंदर। और मुझे लगता है कि हम सबको कुछ ना कुछ नया सीखना मिलेगा आज। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you for sharing a very elaborate PPT हमारे साथ। Different strategies आपने share करी in form of operational measures, environmental measures, infrastructural measures, जो भी हम कर सकते हैं, और कैसे advocacy भी important है ताकि हम लोग as a society, as parents, as caregivers push कर सके schools को या administration को, ताकि वो ऐसे मेजर्स स्कूल्स में लाएं जिससे बच्चे जो हैं या स्टाफ भी है वो भी प्रोटेक्टेड रहे इन हीट एंड अदर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास ऑन द पैनल है डॉक्टर जुगल किशोर सर। सर इज अ डायरेक्टर प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन इन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। सर आज हमारे साथ बात करेंगे एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से ऑन हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑन चिल्ड्रन, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो हैं प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज वो हम लोग यूज कर सकते हैं टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑन चिल्ड्रन। सो ओवर टू यू सर। मेरी आवाज आ रही है? पीपीटी जी सर, आपकी पीपीटी भी दिख रही है और आवाज भी आ रही है। हाँ वो ठीक करना पड़ेगा। नहीं ऊपर देख लो ना हमारा कौन सा रूम, हमारा रूम जो है उसको ठीक करना होगा। हाँ, उसको करो। हाँ नहीं नहीं सामने वाला। अब एक मिनट में कर लो उसको रख लेना। Sorry. Yeah. Actually, Mayhul has given a detailed presentation, और उनके प्रेजेंटेशन में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई। हेल्थ पर्सपेक्टिव से कैसे पेशेंट बनेगा, कैसे उसे मैनेज करना है, वो हॉस्पिटल का दायरे में आता है, लेकिन घर पे कैसे कर सकते हैं वो हम शायद बात कर सकें। लेकिन मैं सिर्फ कोशिश करूंगा कि कम से कम चीजों में आपको बताने की कोशिश करूं कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और फ्यूचर में एक्चुअली ये हर साल हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक ऐसा रेवोल्यूशन भी होना चाहिए शुरू, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर पाए या उसको रोक पाए। और अभी से शुरुआत करें तो मे बी आई थिंक 10 साल में कहीं ना कहीं असर पड़े, क्योंकि हमारे बच्चों पे सीधा इसका असर पड़ रहा है। तो जो डिजास्टर हीट वेव के रूप में अभी उभर के आ रहा है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट पड़ रहा है, ये अब समझ में आता है। अगर किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, तो हम उस मुद्दे को ले सकते हैं कि ये कैसे क्लाइमेट का ही इशू है और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। नाउ ये देखिए कि ये पिछले कई मतलब कि दशकों में कंटिन्यूसली हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वही एक रीजन है कि जब हर साल जब गर्मियां होती हैं तो वो और ज्यादा टेम्परेचर से हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि ये एक तथ्य है, या कहना चाहिए ट्रुथ है, जो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और उसके रीजन भी है, हमने पिछली बार भी कई बार इस बारे में बात की कि वो ट्रांसपोर्टेशन का रीजन हो, या फिर हम जो इतना ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन कर रहे हैं,
अननेसेसरी जो हमने अपना कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया है, डिफोरेस्टेशन कर दिया है, उनसे ही असर पड़ रहा है सारा, जिससे जो कि अभी का नहीं है, पिछले 100 साल से इसके ऊपर असर पड़ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि किसी जगह पर अगर बारिश हो रही है तो किसी जगह पर ड्राउट है, फेमाइन है, और फिर हमारे जो बच्चे इस तरह के एटमॉस्फेयर में, या जब उस तरह का हीट चल रही होती है, तो हम देखते हैं कि वो बहुत ही माइनर शेड के अंदर पड़े होते हैं, और वहां पर हम देखेंगे कि उनके ऊपर कोई अच्छे से शेड नहीं पड़ी हुई, और वो अपने आप को कैसे बचा पाते हैं, और कैसे वो, और ये जैसे इसमें सो रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है सो रहे हैं, लेकिन वो एक ड्राउजीनेस का भी एक लक्षण हो सकता है कि वो अपने आप को बेहोशी हालत में रहते हैं, और वो फिर जब तक टेम्परेचर कम होता है तब तक वो उस हालत में पड़े रहते हैं, और उन्हीं में से कोई ऐसे बच्चे या बड़े हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो ये एक रीजन है। दूसरा, यूनिसेफ के हमारे एक एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि ऑलमोस्ट 1/3 या 1/3 बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, और वो एक साल में 4 से 5 बार हीट वेव के शिकार होते हैं। और उसका जो एक्सपोजर है वो सिर्फ ये नहीं, पर टेम्परेचर जो 35 डिग्री से ऊपर है वो कंटिन्यूसली उनको इफेक्ट कर रहा है, या कहना चाहिए कि एक कंटिन्यूस डेज होता है या उससे लंबे, जैसे 5 दिन या 5 दिन से ज्यादा, जब उसका असर इस बच्चों पे पड़ता है। और ये भी देखा गया कि वो कंटिन्यूसली कभी कभी 15-20 दिन तक भी उनके ऊपर जब टेम्परेचर रहता है, तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं या मसल्स हैं, उन पे इसका अलग असर पड़ता है। और वो क्या असर है, थोड़ा सा मेहुल जी ने बताया, लेकिन एक जो फिजियोलॉजी है, जो हमारा फंक्शन चल रहा है बॉडी का, उसमें अगर हम बच्चों की बात करें तो ये देखा गया कि उनके अंदर जो थर्मो रेगुलेशन होता है, जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, वो एक्सटर्नल टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर को कैसे बैलेंस करके रखेगा, और हमारे कौन कौन से सिस्टम है जो एक्टिवेट होते हैं, जैसे पसीना आना, वो एक सिस्टम है, तो वो थर्मो रेगुलेशन उसको मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। तो वो देखा गया कि इन बच्चों में वो थोड़ा सा इमेच्योर होता है, और मेटाबॉलिक रेट इनमें ज्यादा होता है। ये बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो उनमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, और उनको पसीने थोड़ा देर में आते हैं, तो थ्रेशोल्ड ज्यादा है, तो टेम्परेचर का एक्सपोजर ज्यादा हो गया, लेकिन पसीने उनके बाद में आते हैं, तो वो एक और रीजन है। और इनका वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि फैटी टिश्यू ज्यादा होता है शरीर के अंदर, और वॉल्यूम कम होता है, तो इतना जो एवोपरेशन होना चाहिए या स्वेटिंग होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, और हार्ट रेट बहुत तेजी से होता है इनका। एनाटॉमिकली बताया था, पहले भी बताया था, फिर दोबारा बताते हैं कि इनका जो बॉडी सरफेस एरिया है, वो वॉल्यूम जो उसमें वाटर या फ्लूइड है या फिर ब्लड है, उसके बनिस्पत ज्यादा होता है। तो पर्टिकुलरली जो बच्चे होते हैं बिल्कुल छोटे, 1 साल से छोटे, या जो प्री टर्म, और अच्छी बात यह है कि डॉक्टर वानिया इज देयर हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, कि क्या उनमें किस तरह का असर होगा, तो हम स्पेशली इस चीज को बाद में देखेंगे। एक सोशल जो इफेक्ट होता है उसमें ये है कि जो जिनको केयर गिवर्स, या कहना चाहिए घर में कोई देखने वाला है, वो उसको किस तरह से देख पा रहा है, और वो किस तरह के इन्वायरमेंट में उसको रख पाता है, और उसकी कितनी समझ है, तो और वो कितना उसके ऊपर कपड़े पहना के रखता है। मैंने बड़ी माओं को देखा है कि वो अपने बच्चों को पूरा ढक के रखती है, और पूरा उसको है ना कपड़े हर तरह से पहना के, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का कपड़ा होना चाहिए। वो भी एक इशू है कि वो नायलॉन के कपड़े हैं, या फिर उनको टोपी भी पहना देते हैं, तो बच्चों की बहुत बुरी हालत होती है उस केस में। तो अगर माँ को पता होता है कि कितना एक्सपोजर करना है, कितना नहीं करना है, वो शायद वो ठीक से हो पाए। तो ये सोशल इश्यूज हैं कि हम कैसे बच्चों को रख पा रहे हैं या उनको देख पा रहे हैं, इन सब चीजों का असर पड़ रहा है।
अब हम पिछले सालों से देखें तो हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट इंक्लूड होते जा रहे हैं जिनके अंदर हीट वेव हो रही है, और नंबर ऑफ केसेस जिनमें डेथ हो रही है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 1992 से देखें तो नंबर ऑफ डेथ कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और 2015 तक आप देखेंगे तो ज्यादा हो गई। तो नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ रही है, तो ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता उभर के आ रही है, और हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। इसमें जो फैक्टर्स हैं जो ज्यादा इंक्रीज करते हैं हीट वेव के इफेक्ट को, वो है हमारा जो बच्चे हैं जो 4 साल से छोटे हैं उन पे असर पड़ता है, या जो ठंडे जगह से आते हैं और गर्म जगह पे आ जाए तो उनका असर काफी ज्यादा उनके ऊपर पड़ता है, या उनके अंदर कोई बीमारी हो ऑलरेडी। बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें दिल की बीमारी है, और लंग की कोई बीमारी है, या फिर कोई किडनी की प्रॉब्लम है, तो देखा गया है कि उनके अंदर जो हीट का असर होता है वो ज्यादा होता है और उनमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा, मेडिकेशन, लाइक वो कोई दवा ले रहे हैं। बच्चों को हम कई तरह की दवाएं जो कंटिन्यूअसली देते हैं, उनमें हो सकता है कि जैसे उनको कंजेशन रहता है तो हम एंटीहिस्टामिनिक दे रहे हैं, या उनको अगर बुखार है तो उनको हम एंटीपायरेटिक दे रहे हैं, और साथ में फिर हीट वेव हो तो वो और ज्यादा असर कर देती है, और वो उसमें बच्चे की जान भी जा सकती है। तो जो बच्चे ऑलरेडी कोई ना कोई दवा ले रहे हैं वो एक बहुत खतरे वाला बच्चा होता है जिसको इफेक्ट ज्यादा पड़ सकता है। तो हम ये कहेंगे कि इनके अंदर ज्यादा वर्नेबिलिटी है। तो बड़े बच्चे फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन पे बहुत असर पड़ता है। और इसके बारे में डिटेल में मयूल जी ने बहुत अच्छे से समझाया, बताया। नाउ लिटिल बिट ऑफ लाइक इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस तरह के साइन सिम्टम होंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम होगा वो हीट रैश का होगा। मैं थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो जब एक्सपोजर होगा तो देखा कि उनके शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनको प्रिकली हीट भी बोलते हैं, और ये कॉमनली होता है बच्चों के अंदर। उसके बाद में फिर एडीमा हो जाता है। अगर वो ज्यादा कंटिन्यू रहे तो एडीमा होगा। फिर हीट क्रैम्प्स होते हैं, जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, बहुत उनमें दर्द होगा, ऐठन होगी, और फिर उसके बाद में वो ऐठन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसमें हाथ पांव मुड़ने लगते हैं। वो एक खतरनाक वाली बीमारी, परेशानी या स्टेज है, जिस वक्त में इमीडिएटली हमारे को मैनेजमेंट चाहिए। या फिर उसको बेहोशी होगी, या फिर वो स्ट्रोक होगा। हीट एग्जॉशन इन स्ट्रोक। स्ट्रोक में हम देखते हैं कि उसको प्यास बिल्कुल नहीं लगती, और यूरिन भी नहीं आ रहा, और उसको जो पसीना आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है, शरीर गर्म होता जा रहा है, और उसको सीजर हो सकता है। तो जो मेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है या दिमाग का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो ही बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है बच्चे की। तो उस केस में इमीडिएटली उसको ठंडा करना बहुत ही जरूरी है। तो ये अगर साइन सिम्टम होते हैं तो इमीडिएटली उसका हमें वो करना चाहिए। तो ये देखिए कि हीट रैश और हीट एडिमा होगा, फिर हीट क्रैम्प्स और हीट टेक्नी होगी, या फिर सिंकपी होगी, और फिर हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक होगा। और उसके सिम्टम्स जैसे मैंने बताया। तो जो लास्ट वाले वो इम्पोर्टेंट है, सबको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे में बहुत ही थकान हो, वीकनेस महसूस कर रहा हो, उसको चक्कर आने लगे, सर में बहुत दर्द है, नौजिया वॉमिटिंग सा उसको लग रहा है, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स हो रहे हैं, स्वेटिंग आ रही है, और स्वेटिंग एक वक्त में आना बंद हो जाए, टेम्परेचर उसका बढ़ता जा रहा है, खाने का उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बहुत इरिटेबल हो गया है, पेशाब नहीं आ रहा है, मुंह सूखा हुआ है, आंखें धस गई हैं अंदर, तो और उसको कोई मिर्गी आ जाए तो समझ लो कि वो एंड स्टेज पर पहुंच गया। उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली कॉल सेंटर को बुलाना है, एम्बुलेंस बुलाना है, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, जितना उसको कूल रख सकते हैं कूल करने की कोशिश करना है, और जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती तब तक उसको कूल जगह पे रखना है, ठंडे पानी से उसके ऊपर पट्टियां रखते रहना है, तो वो बच्चा बच सकता है, अदरवाइज उसकी डेथ भी हो सकती है। ये अलर्ट टाइम टू टाइम हमारे न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो देखें। अगर रेड
जोन में है तो बच्चों को कहीं बाहर ना जाने दें। ये इम्पोर्टेंट है कि वो समझें कि इस तरह का अलर्ट न्यूज़पेपर में या मोबाइल पर या फिर कोई भी मीडिया से आपके पास में आता है उस दिन का, इमीडिएटली उस पर एक्शन अपने बच्चों पे या अपने बूढ़े लोगों पर या अपनी प्रेग्नेंट वीमेन के ऊपर जरूर लागू करें। अब ये गवर्नमेंट ने एडवाइजरी लागू की है। उन्होंने कहा है कि आप जनरल पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए, मतलब एवरीबडी क्या क्या एहतियात बरते, क्या प्रिकॉशंस बरते। तो उनको जैसे पहले भी बता चुके हैं कि हमें हमेशा पानी पीते रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी कहीं बाहर निकले हैं तो पानी अपने साथ लेके चले, छतरी लेके चले। अगर ORS है तो बहुत ही अच्छा है, वो तो और भी अच्छा है। लेमन वाटर है या लस्सी है, उस तरह का सेवन करें और फ्रेश सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही खाएं, है ना। जैसे वाटर मेलन है, मस्क मेलन है, ऑरेंज, ग्रेप्स और पाइनएप्पल, इस तरह की चीजों का सेवन करें। हमेशा अपने आप को खुला ना छोड़ें। इवन अगर मैंने कहा कि कपड़े इतने ज्यादा ना हो, लेकिन इतने भी ना हो कि पूरा शरीर के ऊपर सीधा हमारा सन एक्सपोजर हो या सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कवर रहे तो वो प्रोटेक्ट करता है। और लूज कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने। हमेशा हेड हो या फिर ऊपर से ढका हुआ हो, टॉवल रख सकते हैं, कोई भी जरूरी नहीं कि हमारे को हेड ही होना चाहिए या अम्ब्रेला ही होना चाहिए। और हमेशा चप्पल पहन के रहें, ये नहीं कि नंगे पांव आप चल दें। तो ये चीजें जो जनरल पॉपुलेशन के लिए उन्होंने कहा, जो अलर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह का अलर्ट आ रहा है, तो रेडियो न्यूज के अंदर या टीवी के अंदर कोई भी इस तरह का अलर्ट आता है, इमीडिएटली उस पर ध्यान दें और अपने परिवार में उसको लागू करें। और जो लोग इससे ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं उनको ध्यान से उनको रखें। घर के अंदर कूलनेस की क्रिएट करें। इन दिनों में अगर हम कहें कि वेंटिलेशन, पूरे दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो, तो वो जो एयर है या गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमें ढक के बंद करके रखना पड़ता है, अंदर कूल रखना होता है। तो वेंटिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम हवा को आने दें। अगर बाहर का लू है या गर्म है तो वो घर के अंदर बहुत तेजी से गर्म कर देगा। तो हमें देखना है कि डायरेक्ट सनलाइट ना हो, उसको हम अवॉइड कर सके। दरवाजों को, खिड़कियों को बंद करके रखें और रहे कि उसमें एक वेंटिलेशन प्रॉपर, जैसे रोशनदान टाइप में होते हैं, वो ज्यादा अच्छे है। एग्जॉस्ट फैन है वो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू तो ये सब है जो हमें करने हैं। जो नहीं करने हैं वो ये है कि 12 बजे से 3 बजे तक बाहर नहीं निकलना है, जबकि सन एकदम हमारे ऊपर होता है। तो कोई भी काम करना है, सुबह सुबह कर लो या शाम के वक्त करो, दिन के अंदर बिल्कुल नहीं करना है। ये हम अपने बच्चों को बड़ा ध्यान रखें कि दिन के वक्त में उन्हें खेलने नहीं देना है, ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करने देना है, बहुत तेजी से भागना, मेहनत करना, वो नहीं करना है इन बच्चों को। बेयर फुट बाहर बिल्कुल ना जाए, नंगे पांव बिल्कुल ना जाए। उनको कोशिश रहे कि हम पीक समर में, मतलब पीक टाइम में कुकिंग ना करें, सुबह शाम कर लें, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जब कुकिंग करते हैं तो उसका टेम्परेचर और घर का या किचन का बढ़ जाता है। उन बच्चों को कॉफी, चाय, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन दिनों में बहुत वो कोशिश करते हैं, कैंपा, कोका कोला, स्प्राइट, ये सब जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, उससे और प्यास लगती है और उसका डिहाइड्रेशन होता है। तो उनको हम ना इस्तेमाल करें, बल्कि सिंपल वाटर या लिटिल कूल वाटर इज मच बेटर देन लैमिनेटेड वाटर इज बेटर, उसको ज्यादा लें। हाई प्रोटीन डाइट नहीं खाना है। अगर सुबह का रखा हुआ खाना शाम को खाएंगे तो वो सड़ सकता है। तो ध्यान रहे कि हम ऐसे खाने को ना खाएं, क्योंकि आपको हीट के अलावा दस्त शुरू लग सकता है, दर्द, मतलब कि स्टूल या दस्त आपको लग जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वो कॉम्प्लिकेट कर देती इन चीजें, है ना, कि आपको डिहाइड्रेशन इसकी वजह से भी है और हीट वेव का भी है। तो दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, बच्चे के ऊपर पर्टिकुलरली। और बच्चों को कभी भी उसके अंदर ना छोड़ें, व्हीकल के अंदर ना छोड़ें। ये कई सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं जिसमें टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और छोटे बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। उसी तरह से हमारे जो जानवर होते हैं छोटे छोटे, उनको भी ध्यान रखें, ऐसी जगह पर ना छोड़ें
जहाँ उनको इफेक्ट ज्यादा पड़ जाए। और जो बच्चे ड्रग्स वगैरह ऑलरेडी ले रहे हैं तो उनको ज्यादा ध्यान देना इन चीजों का। तो मुझे लगता है कि मैं ऑलमोस्ट सारी बातें कह चुका हूँ। ये है कि ये जो गाइडलाइंस है या फिर कहना चाहिए कुछ यू नो स्लाइड्स और एजुकेशनल मटेरियल ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है, गवर्नमेंट ने निकाला है। और इसको ध्यान से पढ़े, इसमें देखेंगे कि बहुत सिंपल वे में आपको चीजें दिखाई गई हैं और बताई हुई है कि अगर आपको ये होता है तो हीट रिलेटेड इलनेस हो गई है और हमें इमीडिएटली एम्बुलेंस बुलानी है। और देखिए एक ही स्लाइड के अंदर आपको सब चीजें बता दी है उन्होंने, और इसमें जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही क्लियर है। तो इस तरह की चीजें सर्कुलेट करें। आपके पास आ गई है तो अपने दोस्तों के पास भेजें, जिससे कि वो बच्चों को या बड़ों को अपना संभाल सके या उनको हीट का इफेक्ट ना होने दें। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग दैट वी कैन डू। क्या हम लुक आउट कर सकते हैं, साइन सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चे, पेट्स, सब लोगों की ध्यान रख सकते हैं और क्या सब देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब है मिस चहक आहूजा जी। मिस चहक इज अ टेक्निकल कंसल्टेंट ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल हेल्थ केयर इन यूनिसेफ इंडिया। आज हमें चहक जी हमारे साथ बात करने वाली है ऑन क्रिएटिंग हीट रेजिलिएंट स्कूल एनवायरनमेंट्स फॉर चिल्ड्रन। ओवर टू यू चहक। Thank you for the introduction. I hope my screen is visible. Yes, it's visible. सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे पहले जो स्पीकर्स हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी बात कर ली है। I would just try to bring them together and also speak about कि हम नेशनल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ यूनिसेफ कैसे ऑलरेडी काम कर रहा है ये सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए। जैसे कि ऑलरेडी मेंशन करा है कि मैं यूनिसेफ रिसोर्स हूँ नेशनल प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ के साथ। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लाइमेट रेजिलिएंट एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे करें। तो पहले जो स्पीकर्स है उन्होंने ऑलरेडी सिचुएशन जो है हमारा ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाऊंगी स्टैटिस्टिक्स में, but climate change has been a public health emergency that has been declared jointly by UNICEF and WHO in various platforms. We have recognized that it is a emergency situation that we are living in, and ये emergency थोड़ी ज़्यादा हमें we are experiencing in our country and Asian regions and other regions as well. यूनिसेफ हैज डन नंबर ऑफ स्टडीज जिसमें बच्चों को लेके सबसे ज्यादा बताया गया है कि रिस्क किस तरीके का है। तो क्लाइमेट चेंज से जो रिस्क हो रहा है वो बच्चों के लिए वो हाई रिस्क बोला गया है, जिसमें इंडिया जो है वो 7th हाई रिस्क कंट्री में आता है ग्लोबली। और ये रिस्क किस किस तरीके के हैं, दैट इज दैट द चिल्ड्रन आर subjected to adverse consequences of disasters resulting in undernutrition, teenage pregnancy, domestic violence. There is also increased cases of stunting, wasting, underweight, anemia, and other cases. So this is all based on evidence that has been created. हम पिछले 2 साल में डेफिनेटली देख रहे हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा हीट बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा 2023 and now 2024, the number of days of heat waves have increased drastically. And complete हमारे country में there are more than 345 districts which have been categorized as highly vulnerable to heat waves. तो इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा मिलता है कि ये प्रॉब्लम का स्तर कितना है। इट इज सच अ वास्ट प्रॉब्लम एंड ये सबको इम्पैक्ट कर रहा है। वी एज प्रोफेशनल्स देयर इज अ हाई कंसर्न दैट वी आर फेसिंग। डेफिनेटली लेबर्स जो हमारे हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं,
all sorts of social categories are going through adverse cases because of this, जिससे definitely it's leading to economic and labor loss also, but a huge impact on human health, जो मेरे पहले speaker ने भी explain किया in detail कि how it is impacting our human health. तो जब हम बच्चों की बात करें तो एक्सपोजर सेटिंग्स क्या है, किन किन तरीके से कहाँ कहाँ एक्सपोजर होता है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट हीट. डेफिनेटली schools become one of the prior institutional areas जहाँ पे when during the learning objectives as well as the transportation, after that extracurriculars, all of these become a part of it. Homes also are becoming very vulnerable because a lot of the population in India, जिस तरीके के घरों में हम रहते हैं, स्लम एरियाज है, बहुत कंजेस्टेड एरियाज है, परी अर्बन एंड अर्बन एरियाज में there are no open spaces anymore. So that also adds on to the larger vulnerability. तो जब हम हीट की बात करते हैं, हमारा डेफिनेटली साइंटिफिकली हम जब बात करते हैं तो हम सिर्फ टेम्परेचर को लेके चलते हैं, पर higher range of exposure, continuous exposure through all of the activities, through all stages of life and survival is impacting heat. हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इंस्टीट्यूशनली मैंने ऐड करा है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी जो एक्सपोजर है वो हीट का कुछ काफी जगहों पे बढ़ जाता है, बिकॉज दे ऑल्सो डू नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम. जो वेटिंग स्पेसेस होती है वहां पे बहुत ज्यादा कंडीशंस वो नहीं होते कि आप आराम से बैठ सके और आपको छांव मिले. पानी की व्यवस्था जो होती है वो भी थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत में रहती है. तो there are lot of exposure settings that the children are exposed to when we're talking about heat. Throughout, definitely the number of days has increased, the temperature has increased, that is there. So institutional levels also, wherever they are present, that gets compromised. Along with, we have non-institutional settings and pathways. So everything related to transportation, your physical activity, extracurricular activities, all of this जो मेरे पहले भी काफी लोगों ने जिन पे बात करी है, ये सारे एक्सपोजर सेटिंग्स एंड पाथवेज, तो इन ऑल पूरा डेवलपमेंट में एंड चाइल्ड हेल्थ में दिस इम्पैक्ट्स. एजुकेशनल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारी स्टडीज है और हमारे पास एविडेंस है, लेकिन यहाँ पे आई हैव ट्राइड टू यूज दिस इंफॉर्मेशन जो हमें बच्चों से ही मिली है from a couple of states where UNICEF India has been working, और उनको क्या क्या तरीके से impact होता है. तो the children themselves have recognized that how because of global warming the hand pumps dry up, they do not have access to water, continuous and reliable drinking water. The weather is already hot, and why they do not prefer to go to school also sometimes. Then definitely when we're talking about education, a real important is quality education. So we are looking at the learning hours being cut. We are looking at higher number of days जब छुट्टियां हो जा रही हैं. So all of this impacts the learning behavior and learning quality of students as well. So as it is mentioned here, there is less teaching happening. The hours have reduced. There is no proper ventilation, etc. Ceiling fans do not work. Heavy sweating happens. जब हम खुद as humans, as individuals, and in this age also we struggle a lot when we don't have proper facilities. So we can definitely understand from the impact of heat waves and the rising temperatures that how it impacts children much more than the normal lifespan of us. So education facilities mein the learning facilities are compromised, the education access is compromised, health and well-being definitely gets compromised, and the learning quality also gets compromised. इस स्लाइड में थोड़ा सा
एक लुकिंग एट कि हमारे पास ऑलरेडी क्या पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस है जो सिचुएशन को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है. So there is National School Safety Policy Guidelines. There is National Education Policy, which talks about climate change. The National Program on Climate Change and Human Health has identified children as a really important vulnerable group and is engaging in awareness generation, capacity building, and other measures to improvise outreach and also protective behaviors to heat. Then definitely हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का नेक्सस जो है वो काम कर रहा है. और बहुत जगह काफी स्कूल्स में क्लाइमेट चेंज का करिकुलम इंट्रोड्यूस करा हुआ है which addresses a part of awareness that students as well as caregivers and teachers are talking about heat waves and how it is impacting them. Then we're looking at there's also a very important component of eco clubs. बहुत सारे states में यूपी में स्पेशली काफी schools में eco clubs चालू हुए हैं which is looking at greening the school spaces. So outdoors में if there's a good playground but children are not being able to access it, so they're planning plantation and other things around that so that those playgrounds etc can also become accessible and better functional for students during the time of heat waves. तो एक स्टडी हुई है कैलिफोर्निया हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिन्होंने ये एक फ्रेमवर्क तैयार करा है कि हम जब क्लाइमेट चेंज और रेजिलियंस बिल्डिंग की बात करते हैं स्कूल्स में तो उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या तरीके हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वन इज इन तरीकों को हम दो तरीके से देखते हैं. वन इज क्लाइमेट अडेप्टेशन, अनदर इज क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स. तो क्लाइमेट अडेप्टेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बिहेवियरल पैटर्न्स की बात करते हैं, हम क्या क्या चीजें बदल सकते हैं स्कूल में, क्या करिकुलम ऐड कर सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं स्टाफ की, ये सारे अडेप्टेशन मेजर्स में आते हैं. और जब हम हीट रेडी स्कूल करके एक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बात करते हैं विच इज अ जॉइंट ऑफ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स जिसमें हम फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसकी बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एक्शंस है उनकी बात करते हैं और क्या क्या पॉलिसीज है उनकी बात करते हैं. तो and more resources that are required, those are also included. So when we're talking about resilience building, we need to look at both adaptation and mitigation measures, which includes your awareness, your response, and how to build these measures. तो I think डॉक्टर मेहुल ने काफी कुछ कवर कर लिया था जब वो क्लाइमेट अडेप्टेशन की उन्होंने बात करी थी जिसमें वार्निंग्स एंड अलर्ट्स व्हिच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक हमारे पास जो है वो वार्निंग जो है IMD से इशू होती है व्हिच इज सेंट अप टिल द डिस्ट्रिक्ट लेवल. District has the responsibility to disseminate it to all the departments. तो मोस्टली क्या होता है कि ब्लॉक लेवल तक तो वार्निंग्स चली जाती हैं पर हम जब फैसिलिटी लेवल की बात करते हैं तो फैसिलिटी में स्कूल के अथॉरिटीज के पास, पेरेंट्स के पास, लोकल जो बॉडीज हैं उनके पास ये अलर्ट्स एंड वार्निंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस जाना और उनको समझना कि ये वार्निंग किस लिए है, आज क्या कैसे करना है, दैट इज समथिंग जो हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा. अवेयरनेस बिल्डिंग डेफिनेटली काफी सारे डिपार्टमेंट साथ में मिलके posters or miking, lot of drives are being conducted around awareness generation on preventive behaviors for heat wave, जिसमें especially for children also these have been recognized. Curriculum and training में in a lot of states there has been inclusion of curriculum of climate change and heat.
और ट्रेनिंग भी है जिसमें टीचर्स को भी इंक्लूड करा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग्स में with the disaster department to be better prepared to climate change and emergencies. Then school building greening की बहुत जगह बात हो रही है where schools are taking measures through eco clubs and other resources to build such places, such common places where children are safe, which there is reduced exposure and other such engagements. Virtual engagement, online classes and all are being built up. मेडिकल सपोर्ट एंड सुपरविजन की काफी जरूरत है. जब हम हीट की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट अ वन डे थिंग, इट इज समथिंग दैट चिल्ड्रन आर बीइंग एक्सपोज्ड टू ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर हायर लॉन्गर ड्यूरेशन. इसीलिए हमें थोड़ा सा और कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा या कोई मेजर्स लाने पड़ेंगे कि जो मेडिकल टीम है हमारे इंस्टीट्यूशंस में वो इमिडिएटली अवेलेबल हो पाए, या वो जो हाई टेम्परेचर डेज है उनमें वो स्कूल विजिट्स भी करते हैं कभी कभार, तो वो इंश्योर करें ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड डेफिनेटली देयर इज एन नीड टू लुक एट द न्यूट्रिशन इनटेक. हमारा गर्मी में बहुत नॉर्मल बिहेवियर है कि हम खाना रिड्यूस कर देते हैं. सो ऑल ऑफ दीज preventive measures and behaviors need to keep on reinforcing that so that the adaptation component of it can be addressed. एक यहाँ पे एक मैंने एक विजुअल डाला हुआ है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल हीट एज अ हजार्ड जो है वो उसके क्या क्या तरीके हैं उसको एड्रेस करने के लिए. तो जब हम स्टूडेंट एक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करते हैं, these are mostly adaptation based behaviors जिसमें we looking at cutting the time, we looking at better behaviors, we looking at how to better manage and adapt to the external conditions. बट जब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये अब समस्या बढ़ने वाली है, कम तो होने में आई गेस इट वुड टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम. So it's mostly for now, for a couple of years, it's a much larger situation that we're looking at. तो इसके बढ़ते ही हमारे लिए और ज्यादा समस्या क्रिएट होगी to keep students out of the heat. So that physical separation that we're looking at is kind of impossible to achieve, which is why we need to look at both mitigation as well as adaptation measures. मिटिगेशन मेजर्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है उनको हम कर सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात करके, वाटर एफिशिएंसी, वी हैव सेफ ड्रिंकिंग सोर्सेज, वी हैव वाटर मैनेजमेंट प्लान्स, then we're looking at solarization of institutions, building cool measures, so the infrastructure is built in such a way there is technology, there is white reflective paint that is available, ventilation and all की बात already हुई है. So there are a lot of things which are coming up which can become very important and core part of how we look at institutions and the infrastructure. Transportation definitely becomes very important when we're talking about children, and also building on digital infrastructure, because क्लाइमेट चेंज में एक ऐसा बोला जाता है कि आपको वर्स के लिए तैयार होना चाहिए. तो जब वर्स सिचुएशन आएगी कि हमें एक्सेस करने में ही ज्यादा दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स है, एंड इनको थोड़ा और इफेक्टिव करना पड़ेगा so that at least the learning outcomes can continue. वेरी ब्रीफली हमारा एक स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम है जो यूनिसेफ कर रहा है, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट हेल्दी चिल्ड्रन प्रोग्राम है जो यूनिसेफ कर रहा है. बोथ आर बीइंग कैरिड आउट विद NDMA NIDM collaboration, also the national program climate change and human health. So we're working with multiple ministries to look at this situation. तो जो स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम है उसमें काफी ज्यादा चीजें हमने ऑलरेडी ऐड करी है अराउंड बिहेवियर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एट स्कूल्स दैट चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड टू. Regular trainings are also provided to teachers and other caregivers on how to take up measures, and also काफी resources तैयार करे हैं यूनिसेफ हेडक्वार्टर्स एज वेल एज नेशनल ऑफिस ने
कि क्या समस्या है, assessing the situation, and how we can go forward with it when looking at different level of institutions, that is schools, healthcare facilities as well. ये कुछ रिसोर्सेज है, ये एक नया तो definitely as national program is working very much on heat waves, where awareness and capacity building is a very important thing. So regularly we are creating content and posters and other audio visuals etc, जिसमें हम सारी पॉपुलेशन ग्रुप्स को, वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स को एड्रेस कर रहे हैं. तो दिस टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन आल्सो, दैट व्हाट दे कैन डू and what are the effects of extreme heat on children. Thank you. Thank you, Chehek. I would request you to please also share links of these resources on the chat box so that our attendees can Sure. access those. So thank you. It was very informative presentation, and I'm sure we have learned a lot from this presentation as well. So thank you. Next up, we have Dr. Vanya Gupta from BPS Medical College, Sonipat. She's going to be talking to us about effect of heat waves on newborn specifically, जो newborn babies होते हैं and infants below 1 year age. तो कैसे heat waves उनको affect करती हैं, and how can we protect those small babies from the effects of heat waves? Over to you, Vanya. Can you unmute yourself? I've sent you a request. Hi, Yes, we can thank hear you. you. Yes. Good evening, everyone. Thank you so much for having me. And I'm here to discuss about the most vulnerable members of our society, that is the newborns, and the impact of heat waves that happens in that part of the society in India, as the temperatures are soaring and the climate patterns are shifting. So we have to understand the specific ramifications उनकी newborns की health पे specifically, जो कि youngest citizens हैं. So let's start with this. Is the slide visible? Yes, we can see your screen. Okay. So India's sweltering heat waves are posing a grave threat to the health and well-being of newborns, as our distinguished speakers have already discussed so much in such an elaborate way. I am going to focus on newborns specifically, and so let's start with the definition. The heat waves that are temperatures exceeding more than 40 degrees Celsius. These are extreme temperatures that have severe physiological impacts, especially on the vulnerable populations like newborns. There is widespread impact of heat waves that covers vast geographic regions, affecting entire communities and overwhelming local infrastructure. तो जो स्केल है हीट वेव्स का, वो बहुत ही लार्ज, बहुत ही बड़ी जियोग्राफिकल एरियाज में देखने को मिलता है, and that poses a very severe health risk on especially the newborn population. अब न्यूबॉर्न्स जो हैं वो डेफिनेटली बहुत ही सेंसिटिव हैं हीट वेव्स के लिए, और हीट के जो डैमेजेस हैं उसके लिए दे हैव अंडरडेवलप्ड थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम्स, जिसकी वजह से दे स्ट्रगल टू अडेप्ट टू अब्रप्ट चेंजेस जो कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर्स पे आते हैं.
तो बहुत ही वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिन पे हमें फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग हीट वेव्स। सो क्या क्या फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं हीट वेव्स के? लेट्स सी, देयर इज एलिवेटेड हार्ट रेट हमें देखने को मिलती है as their bodies struggle to regulate the temperature and maintain homeostasis, and respiratory distress देखने को मिलती है due to extreme heat that can compromise a newborn's respiratory function, leading to labored breathing and increased risk of respiratory infections also. There's excessive sweating क्योंकि न्यूबॉर्न्स की जो एबिलिटी होती है स्वेट करने की दैट्स लिमिटेड, बट एक्सट्रीम हीट की वजह से there's excessive sweating and fluid loss, and electrolyte imbalance देखने को मिलता है, fluid loss and electrolyte imbalances. So newborns have a high surface area to volume ratio, as already discussed earlier, that makes them more susceptible to rapid fluid loss during heat waves. This can lead to dangerous dehydration if not closely monitored. And electrolyte disturbances due to excessive sweating and fluid loss, and that can disrupt the delicate balance जो कि electrolytes का होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो कि imbalance कर सकता है organ functions को and उनके neurological development को. अब newborns जो है they have a heightened susceptibility to respiratory distress. Heat waves उनके lung function को impair कर देते हैं. They have a delicate respiratory system of newborns, and that leads to decreased lung capacity and difficulty in breathing. There's increased risk of apnea. Apnea are episodes of stoppage of breathing. Extreme heat can trigger these episodes of breathing cessation in preterm and low birth weight infants, जो कि that require urgent medical attention. There's exacerbation of pre-existing conditions. Newborns with underlying respiratory issues, जिनको already कुछ ना कुछ comorbidity है, respiratory issues है like respiratory distress syndrome, they have higher risk of complications during heat waves. Elevated incidence of hypothermia and heat stroke. जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर जो कि हाइपोथर्मिया हमें देखने को मिलता है बिकॉज न्यूबॉर्न्स आर मोर ससेप्टेबल. They have abnormally high body temperature during heat waves due to their underdeveloped thermoregulatory systems. They are at risk of heat strokes क्योंकि prolonged exposure अगर monitor नहीं किया and ध्यान नहीं दिया, that can lead to life-threatening heat strokes, causing organ damage and neurological complications in vulnerable newborns. Impaired sweating, we have already seen, that puts them at a greater risk of heat-related illness during heat waves. But what are the challenges in maintaining optimal body temperature, especially in newborns? Temperature regulations, because they have underdeveloped temperature regulatory systems. Evaporative heat loss, if we don't keep them in check, if we don't monitor, if we don't take care in a specific way, newborns experience rapid evaporative losses through the skin and respiratory system, making them vulnerable to dehydration and electrolyte imbalances. Insulation changes. Newborns have a high surface area to body mass ratio, we have already seen, and limited subcutaneous fat, reducing their insulation against heat and cold. That makes them less able to retain or dissipate heat effectively. Physiological strain. Extreme temperature can place physiological strain on newborns, जिससे उनकी जो energy होती है, जो कि उनके development में जानी चाहिए, that is diverted towards away from critical growth and development. Also, during heat waves, there is increased vulnerability to infectious diseases to these newborns. उनका जो immune system होता है वो compromise हो जाता है. Newborns, especially those born prematurely, have underdeveloped immune systems, making them more susceptible to infections during heat waves. High susceptibility. Extreme heat can weaken a newborn's ability to fight off common infections, increasing the risk of complications like pneumonia, sepsis, and meningitis. Vigilant monitoring. Healthcare providers must be extra vigilant in monitoring newborns for early signs of infection, जो कि हमने already देखी अभी, and provide prompt treatment to prevent serious outcomes. Now,
because we are talking about newborns, let us see कि neonatal mortality rate पे क्या effect होता है heat waves का. According to the recent stats, 15,000 infant deaths each year, and estimated 15,000 newborn infants in India succumb to heat-related complications during heat waves. 30% mortality increase has been seen during heat wave events. The neonatal mortality rate in affected regions can spike by as much as 30% compared to non-heat wave periods, and twice risk doubling. Newborns are twice as likely to die during heat wave compared to normal weather conditions. Now, lastly, we're going to see some strategies कि हम अब कर क्या सकते हैं इसे इस problem को mitigate करने के लिए. So, preventive measures like optimize the nursery conditions, ensuring nurseries are well ventilated, temperature controlled, and equipped with cooling devices to maintain a comfortable and stable environment for the newborns. Educating parents and caregivers. Parents and caregivers should have a proper training on recognizing heat-related symptoms and administering first aid. Encouraging proactive hydration and skin protection for newborns. And enhancing medical preparedness. Obviously, newborn की जो health facilities होती हैं, they should be having backup power, emergency cooling systems, and adequate supplies to manage the heat-related complications in newborns. Adequate hydration. Newborn may to keep the newborn well hydrated by offering frequent feedings of breast milk or formula. Breastfeeding can help regulate the baby and body temperature and provide essential nutrition. Lightweight clothing. Dress the neonate in lightweight, breathable clothing that covers their skin to protect from sun, but also allows airflow. Avoid overdressing as this can lead to overheating. Shade and protection. If going outside, ensure that the neonate is shielded from direct sunlight. Using a stroller or with a canopy or baby carrier with built-in sun protection can be helpful, and use a lightweight blanket or muslin cloth to cover the baby's skin. Other than that, we have already seen, as Jugal sir has already pointed out, a lot of methods to mitigate and take care of children during these heat wave periods. And yeah, this is it. Thank you. Thank you, Dr. Vanya. You beautifully highlighted the extreme risk that heat wave pose, especially to newborns and infants, and how important it is to educate the caregivers, parents, especially even grandparents, towards these various risks and what they can do to mitigate those risks and to take care of the children better during heat waves. So thank you so much. Now we are done with our individual sessions. Can we, now we are going to move on to our question and answer section. If any of our attendees, they want to ask specific questions to our children or not to our children, sorry, if they want to ask any questions to our speakers, they can write them down in the chat box or raise their hand and we can come to them for the questions. We've also shared links of some IEC material for awareness in the chat box, and all the PPTs that have been used by our speakers today will be shared with the attendees later on. Do you have any questions? No. Sir, we also had one student from 3rd class who had joined the webinar earlier, but now he seems to have left the webinar. He had stayed through almost half of the session. He was a 3rd class student. No major question. No major questions. I think we've covered majority of the things. Anything else जो आपको लगता है हमें maybe हमने miss out कर दिया हो, या कोई ऐसे preconceived notions हो लोगों के उसमें कि जैसे newborns को हमें नहीं air conditioning में रखना चाहिए even during heat waves.
तो कैसे मतलब पेरेंट्स शुड कीप दैट इन माइंड कि एयर कंडीशनिंग में जब हमें कंफर्टेबल लग रहा है तो इवन न्यूबॉर्न्स विल बी कंफर्टेबल. Atisha, we can hear a bit of echo. I think there is some other device which is also. Atisha, Yes, sir. I think one point for Jugal sir to respond on, right, Udar Sijamna. See that many times the air conditioning temperature is quite low and the outside temperature is very high, and when people have to go out, so it makes a great difference, and it also causes severe problem. So any advice from Jugal sir to people, and more particularly when we are keeping our children or infants, so what temperature we should maintain so that when we take them out or when we ourselves go out, what any idea, any kind of advice from Jugal sir or any other member of the panel? Yeah, Anil ji, ये इको इसको बंद करो. Anil sir की device ठीक होगा. I'm muting him. Yes, sir. क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है. जी सर बताइए. ठीक है. हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली हमारे साथ में भी होता है कि हम ज्यादा टाइम तक बहुत अच्छे एयर कंडीशनिंग में रहते हैं, और अगर सडन चेंज हो, जैसे आपने बताया कि हीट वेव का डेफिनेशन है, सडन चेंज अगर होगा टेम्परेचर का, तो उसमें ज्यादा इफेक्ट होते हैं और ज्यादा मॉर्टलिटी भी होती है. तो वही है कि अगर टेम्परेचर आपने 19, 18 या 20 किया हुआ है, और फिर बाहर का टेम्परेचर अभी जो चल रहा है वो 45, 46 के आसपास है, या कहीं कहीं पर 41 है कंटिन्यूअसली, तो ये सडन चेंज ऑफ 20 डिग्री टेम्परेचर, नो बॉडी कैन बैलेंस सच ए ह्यूज चेंज इन ए शॉर्ट पीरियड. तो ऐसा जो बॉडी को चाहिए वो हमारे को एक्चुअली कभी भी 18, 19 और 20 के आसपास टेम्परेचर कभी नहीं रखना चाहिए अपने उसके लिए एयर कंडीशनिंग में. इट शुड बी ऑलवेज अराउंड 25, 26, 28 is the best. 27, 28 is the best. तो टेम्परेचर हमारा उस तरह से रखना चाहिए जो नॉर्मल ये रूम टेम्परेचर होता है. और बच्चों से खास तौर से जो ओल्ड पीपल, इवन वी हैव फाउंड कि कंटिन्यूअसली गोइंग आउट इन कैन क्रिएट लॉट ऑफ exhaustions, weakness, cramps immediately, and the people become tired. तो सभी से एडवाइस है कि टेम्परेचर को थोड़ा सा ज्यादा रखें, ना कि बिल्कुल 19 डिग्री पे उसको रखें कि बिल्कुल आप ये सोच रहे हैं कि हम जैसे कोई हिल स्टेशन पे आ गए, उसकी फील महसूस करने के लिए आप एयर कंडीशनिंग इतना ठंडा रखें. वो बहुत ही ठीक नहीं है. वो ठीक नहीं है. जी. Thank you, Dr. Thank you, sir. So we have a few hands raised. Okay, requesting DI Gurugram to unmute themselves. Can please ask your question. मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए. जी आ रही है. मैम, जैसे कि अभी बात हो रही थी, मैं राजेश बोल रहा हूँ DI गुरुग्राम से. तो जो हमारे जो 90% स्टूडेंट्स है मैम, वो स्लम से आते हैं, मतलब झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं. तो उनके लिए कोई एडवाइस है क्या? हमारे सेंटर पे तब तक तो सेफ सिक्योर है, मगर उनका जो है कि ऑलरेडी झुग्गी झोपड़ी से है, तो उनका ना शेल्टर भी ठीक नहीं है, आसपास का जो एटमोस्फेयर है वो काफी हीट है. तो उनके लिए कोई सजेशन है क्या आपके पास? Like to take this? UNICEF, I think UNICEF can also respond. For poor children. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा समस्या ही यही है कि हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं जगहों पे रहते हैं, और इन ज़्यादा समस्या ये है कि हमें कूलिंग डाउन पीरियड नहीं मिल रहा है. दिन भर तो टेम्परेचर हाई है,
उसके बाद भी शाम में जैसे पहले होता था कि थोड़ा कम हो जाता था, एनवायरनमेंट कूल डाउन हो जाता था, तो बिकॉज ऑफ हायर कंस्ट्रक्शन एंड ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, तो वो कूलिंग डाउन पीरियड जो है वो भी बॉडीज को अब नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। तो एक थोड़ा सा बहुत कॉस्ट इंटेंसिव नहीं है, हल्का सा उसमें एक्सपेंडिचर है कि हमने काफी जगह ये देखा है कि आप जो रूफ्स है, इवन दो पक्के रूफ्स नहीं है, वो टार वाले रूफ्स है, उसमें भी एक एफिशिएंट वाइट पेंट आता है। तो वो वाइट पेंट अगर इस्तेमाल करने में आए, उससे आपका एटलीस्ट इंडोर टेम्परेचर जो है वो अराउंड 2 to 3 डिग्रीज, हमने अभी तक हम मॉनिटर कर रहे हैं वो डेटा को भी, पर 2 to 3 डिग्रीज का डिफरेंस हमें एक साल में जितना पता चला है लोगों से कि वो आ रहा है। तो एटलीस्ट ये है कि उस लेवल का गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। दूसरा, बिकॉज ऑफ स्लम एरियाज एंड ऑल, वेंटिलेशन जो है बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। तो वेंटिलेशन अगर एक भी, कम से कम एक खिड़की होनी चाहिए, तो जो खिड़की है छोटी है बड़ी है, उसमें अगर हम गीला कपड़ा टांग दें, हल्की सी हवा का रोटेशन वहां से करें, तो इट हेल्प्स। तीसरा है जो हम सेल्फ कर सकते हैं कि हम हल्का सा पानी छिड़कते रहे अपने ऊपर, जब कुछ भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वो नहीं हो रहा है, तो सेल्फ उसमें ये है कि हम पानी छिड़कते रहे। पानी पीने की बात तो है ही डेफिनेटली, तो पानी छिड़कने से ऑन अ रेगुलर बेसिस या गीले कपड़े से पोंछने से अपने शरीर को हल्का फुल्का, आर्मपिट्स एंड नेक एंड सच एरियाज जिनसे हेल्प मिलता है, तो दैट हेल्प्स एज अ इंडिविजुअल मेजर टू बी बेटर प्रिपेयर्ड। इसी में मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर शायद स्लम में बहुत जगह पर पानी भी नहीं मिलता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपके पास में वो बच्चे आते हैं तो उनको सिखाएं कि दिन के वक्त में वो बिल्कुल बाहर ना निकले और अपने जो झुग्गी है उसी के अंदर रहें या किसी न किसी शेड में रहें, और किस टाइम में वो खेले। तो ये चीजें वो समझ लेते हैं बच्चे कि किस वक्त में उनको खेलना है और किस वक्त में उनको बिल्कुल नहीं खेलना है। और ये सलाह अगर उनके पेरेंट्स को भी बुला ले तो और अच्छा होगा। तो इतना हम कर सकते हैं कि कम से कम वो अपने आप को जो प्राइम टाइम है उसमें एक्सपोज ना होने दें और उनको उसकी इफेक्ट बता दें। और अगर कोई एक्सपोजर हो जाए तो फिर वो किस तरह से इमीडिएटली रश करे, ये ना कि वो घर पे ही उसका इलाज करते रहे। तो ये चीजें जो शायद काफी हद तक सहायक होंगी बच्चे को बचाने के लिए। सर अगर मैं दो बात और जोड़ूं, हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक डिमांड सर्वे किया है और उसमें हम लोगों ने एक्सपर्ट से पूछा, लोगों से पूछा है कि भाई उनके डिमांड्स क्या है। हम लोग हमेशा सप्लाई ड्रिवन इंटरवेंशन के ऊपर फोकस करते हैं ना ज्यादातर, कि भाई हम लोग उनको ये दे देते हैं तो इससे काम चल जाएगा, ये दे देते हैं तो ये संभल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। तो उन लोगों ने जो ये सारी चीजें बताई, कूल रूफ का बात किया आपने सर, वाटर अवेलेबिलिटी का बात किया, पर इन एडिशन टू दैट दो चीजें और मैं जोड़ना चाहूंगा। एक तो है कम्युनिटी कूलिंग फैसिलिटीज। स्लम्स के जो क्लस्टर्स होते हैं, तो हर एक जगह पर हर एक स्लम्स के हाउस के अंदर तो हम लोग एसी या कूलर फिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक कॉमन असेंबली पॉइंट है जहां पर लोग आके बैठते हैं, मिलते हैं, दोपहर पूरा वहां पर ही वो सो भी जाते हैं, तो अगर ऐसे प्लेसेस के ऊपर प्रॉपर वेंटिलेशन शेडिंग करके वहां पर जो अगर उसको कूलिंग सेंटर बनाया जाए, तो जो दोपहर का जो पीरियड जो है वो बच्चे आराम से निकाल सकते हैं। तो एक कम्युनिटी शेल्टर का कंसेप्ट भी आया है कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा है कि हम लोग सोचते हैं कि यार गरीब है तो गरीब को थोड़ा ना एसी चाहिए, उनको थोड़ा वाटर कूलर चाहिए, उनको थोड़े पंखे चाहिए, ये सब तो वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर एक्चुअली उन लोगों ने डिमांड किया है। पर पता है प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम वहां पर आ रही है कि उनको फाइनेंस करने वाला कोई है ही नहीं, उनको वो बजाज वाला कार्ड मिलता ही नहीं है। वो अफोर्ड कर सकते हैं, मजदूरी करते हैं, हाउस के अंदर 4 लोग कमाते हैं, 2000 रुपया वो लोग दिन के कमा के लाते हैं, तो वो लोग लोन पे अफोर्ड कर सकते हैं, पर वो देने वाला कोई नहीं है। तो वो जो उनको लिंक करने का काम जो है वो बहुत बड़ा है,
और कूलिंग इक्विपमेंट का मार्केट जो है वो इतना बड़ा होने वाला है इंडिया जैसे कंट्री में। वर्ल्ड बैंक ने तो खैर ऑलरेडी स्टडी भी किया हुआ है। तो हम लोग कैसे ये जो मिसमैच जो है डिमांड और सप्लाई के बीच में, तो वो हम लोग कैसे ब्रीच करें? अगर हम लोग ये कर पाए तो काफी हद तक हम लोग ये सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। आपकी बात से एक और चीज़ याद आई। अभी जोधपुर में एक सिटी एक्शन प्लान जो बना था वो इस साल लागू हो रहा है। तो मैं पिछले हफ्ते ही वहाँ थी जब हीट वेव एक्सट्रीम डिक्लेयर हुआ था। तो अभी वहाँ पे एक कूलिंग सेंटर बना है, ज़्यादा नहीं बना है क्योंकि इसी साल से चालू हुआ है। लेकिन वो कूलिंग सेंटर में हम लोग 2 से 3 दिन थे और एक कूलिंग सेंटर से इतना डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम बाकी ऐसे इनिशिएटिव्स, एंड वेरी मच ग्रेटफुल टू द वर्क दैट इज डन बाय महिला हाउसिंग ट्रस्ट, दे हैव टेकन इट अप, and district administration, very important for them. So because they are very keen and they are implementing it, वो एक सेंटर से सुबह से लोग, और ऐसा नहीं है लोग बहुत देर बैठते, थोड़ी देर बैठते हैं अपना, एंड वहां पे भी एसी और ये सब का कूलिंग नहीं है। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन सस्टेनेबल मेथड्स। बड़े पंखे लगे हुए हैं जिनसे हवा का छींटा निकलता है। छोटा सा सेंटर है, सिर्फ बैठने की जगह दी गई है लोगों को। तो उससे भी काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। जो हमारे ऑटो रिक्शा वाले हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उसके पास है, तो बच्चे जिनका एग्जाम था उनके माता पिता, उनके भाई बहन वहां पे आके 2-3 घंटे बैठे जब तक उनका एग्जाम चल रहा है। तो ये सारी चीजें काफी मदद इनसे मिल रही है। अब मुझे आपकी बात से एक और एग्जांपल याद आ गया है। जब मैं ओडिशा में जो था, अब ओडिशा में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है डिजास्टर इन रिलेशन टू डिजास्टर मैनेजमेंट। वहां पर साइक्लोन शेल्टर से 3-3 माले के साइक्लोन सेंटर से ऑलरेडी यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सिर्फ कूलिंग प्लेस बनाने का जरूरत है। तो मतलब रूरल पॉपुलेशन भी वहां पर जाता है, लोग वहां पर पूरा अपना आफ्टरनून जो है वहां पर गुजारते हैं, मोबाइल भी वहां ही चार्ज करते हैं। तो ऐसे इंफ्रा जो कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल जो है उसको हमको यूज करना चाहिए। और जहां पर साइक्लोन शेल्टर्स नहीं है, अरे यार स्कूल्स तो है ही, हम लोग स्कूल्स को कूलिंग सेंटर के हिसाब से देखा ही नहीं है। म्यूनिसिपल स्कूल्स कितने सारे होते हैं सिटीज में, तो बच्चों वहां पर जा सकते हैं, कूल डाउन हो सकता है वहां पर काफी सारे मतलब। पर हम लोग ऐसे सोचा ही नहीं है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर सोचे कि भाई इन्हीं को स्कूल्स को ही हम लोग कूलिंग सेंटर्स क्यों ना बनाए कम्युनिटीज के लिए, और जो म्यूनिसिपल स्कूल में जाते हैं वो गरीब घर के बच्चे ही जाते हैं। तो हमको वो उस दिशा में हमको शायद सोचना चाहिए। थैंक यू। Thank you, sir, and thank you, Chahek, for sharing some case studies हमारे साथ. I think it will be a good example जो हम take up कर सकते हैं, और initiatives that we can maybe talk on with the right partners to take on. Javed ji? Yes, yes. This is Please Javed. ask. Yes. I am from Jammu and Kashmir, and we have been seeing a huge challenge from cool temperature to moderate type. Now we have extreme type of climate here. Earlier we were having lot of trees, but due to deforestation, lot of macadamization, the heat waves have very much increased. Now, even we had a time when we are not using the fans. Now we are using the fans and coolers and other things also. My question is actually one regarding where there we have soft type of temperatures, and now it has raised to a maximum extent. And second is that what about the children with disabilities who have a lot of intellectual disabilities? There are so many intellectual disabled conditions where when the temperature increases, the behavior issues happen. There is a lot of stress on the brain, and when we take the children to the various intervention centers, they become very harsh and their behavior is very much angry and little bit very sad. So are there any special type of treatments or whatever remedial factors are available to deal with such conditions where children with intellectual disabilities are facing lot of difficulties due to the climate change and heat waves? Thank you, sir.
So I think it is an important question क्योंकि सब states में वो the threshold of heat waves it's different. The heat shock is different. But I don't think we have such facility anywhere for disabled, particularly the mental. We don't have. We require, and we already know that extreme temperature, whether it's cold or heat, both affects the mentation. So, like the cooling, community cooling and all these things can have a special arrangement for the, children, such kind of children or disabled children like who cannot reach that. So when they are making, they should make it, in such a way where all kinds of children or people who are disabled can also avail. It should not be like, staircase where they cannot climb. So it should be uh, suitable for all. So that is a requirement. And thank you for bringing this issue. I think we have to work on this more and more. Yes, sir. So I would also like to add that the next session that we have next week, we are going to be talking about the mental health impacts that heat waves can have. And I think us session may we can also add this special a session on disability integration or inclusive measures for heat wave protection. So thank you, sir. Thank you for raising this important issue. We have one more question. Actually, we are running short on time. We have already exceeded our time limit anyway, but I think we can take one last question, and other questions you can send to us on our emails and also drop in the chat box, and we may pick them up over mail or address them in our further sessions. DI Gurugram, sir, are you there? Do you want to ask something? Or जी मैम, मैं जी, ये जी, बोल रहा please. था कि सर ने जो प्रिकॉशंस बताए हैं, ये कोस्टल एरिया का तो समझ में आता है, अगर जैसे कि आपने सुना है दिल्ली या हरियाणा उससे रिलेटेड जो है ना, यहाँ पे एक्सट्रीम हीट होती है, तो जो सर ने प्रिकॉशंस बताए हैं उस मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये सुटेबल होगा। जैसा कि सर ने बताया, छोटा सा मैम ने बताया कि एक विंडो उसमें कपड़े वगैरह तो इनसिक्योर हो जाता है, विंडोज ऑलरेडी वो ऐसे अपने आप को कवर्ड करके रखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी का टेम्परेचर हमारे यहाँ का 47.6 डिग्री सेल्सियस है मैम। इस कंडीशन में हमें तो ठीक है, हमारे यहाँ पे इस कंडीशन में एसी और कूलर दोनों का दोनों ही काम करना बंद कर देता है, आप बिलीव नहीं करोगे। दोनों मतलब कोई फायदा नहीं है, एसी से भी और कूलर से भी गर्म हवा आती है। तो इस कंडीशन में हम समझ सकते हैं एक बिल्डिंग के नीचे है, मगर जो स्लम्स में है मैम उनके लिए अनबियरेबल हो जाता है, और पानी की समस्या उनके पास ऑलरेडी होती है। तो मतलब इस चीज में मैं गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक और तो और आईसी मटेरियल भी यहाँ के लोकल जो स्टेक होल्डर्स है, आईसी मटेरियल उनके पास नहीं है कि हम मीटिंग्स वगैरह जो करते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सके। मैंने कई जगह विजिट किया है, मैं डीसी से भी मिला कि इसके रिगार्डिंग आईसी मटेरियल मिल जाए। तो मैम जो आप आईसी मटेरियल देना प्लीज हिंदी में देना, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना हिंदी भाषाभाषी वाले ज्यादा है, तो हो सकता है कि उससे भी कुछ अवेयरनेस पहले एक दूसरे को बताए। थैंक यू सो मच, आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। सर हम लिंक शेयर कर नहीं, देंगे चैट बॉक्स में, हमारे पास हिंदी के आईसी मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं। ओके सर जी, और थैंक यू समस्या को बहुत अच्छे से बताने के लिए, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं हमें लगता है हमारा काम चल रहा है और हम समाधान को डेफिनेटली हम समस्या समझते हैं, लेकिन हम समाधान पे भी बात करते हैं क्योंकि हम उस पे काम कर रहे हैं। पर with every day the conditions that are happening, जो situations हो रही है, we need to keep on working and we need to keep on looking at the situations at a much larger aspect. तो हमें लगता है कि अच्छा ये नहीं है तो ये हो जाए, ये नहीं है तो वो हो जाए, तो जब कुछ भी नहीं है तब क्या? तो डेफिनेटली द प्रॉब्लम इज मच लार्जर। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी इफ पॉसिबल आप अपना डिटेल्स डेजिग्नेशन अगर मेरे से शेयर करें, बिकॉज आई वुड लाइक टू मीट यू एंड डिस्कस कि दिल्ली में और हरियाणा में आप ऑलरेडी क्या काम कर रहे हैं और क्या चल रहा है।
क्योंकि मैं भी बहुत क्लोजली दिल्ली के और नेशनल लेवल डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रही हूँ, तो मे बी वी कैन टॉक अबाउट दिस, एंड अगर कुछ मदद हो पाए एमसीडी के साथ मीटिंग्स वगैरह की, तो वी कैन प्लान दैट. थैंक यू. Thank you, Mr. Heck. We'll share his details with you over mail. So thank you, everyone. I think we should close for today. I will now invite Hannah from Sphere India to give a formal vote of thanks for this session. Thank you. Thank you so much, Atisha. It was a wonderful session. So many informations that we received. I would like to thank all our speakers, especially Anil Gupta sir for starting off the session, and also all of our speakers, Mehul sir, Jugal sir, and also Chehar ma'am, and also Dr. Vanya. Thank you so much for explaining everything in very detail. We really learned a lot from today's session. I hope everybody can see my screen. Yes. Okay. So we discussed about why are children more vulnerable, and also impacts that children can have on heat waves, impacts of schools on heat waves, and also some strategies, operational measures that schools can take up, and also individually people can take up recommendations. We learned about how it affects the early development of children, signs and symptoms, do's and don'ts. It was very informative. We are writing reports of every session, so that will be shared with you all. And also, as our previous participant was saying, we are creating session-wise IEC material on regional languages, so that will also be shared. So thank you all for attending our sessions. Once again, thanking all the participants. This is a series of sessions that we're doing, and our next session is on mental health and psychosocial impact because of heat waves. I know everybody is facing a lot of mental health problems like depression and whatnot. So we'll have experts who will be talking on this. So you can scan the QR code which is there in the screen, and you can register for a next session. And also you'll be getting the emails regarding this. Thank you, everyone. And also, I have seen one person in the chat box asking about heat islands. Our previous session was on heat wave impact on shelters. So you can go through that session. I will share the link here, and please feel free to reach out to us if you need any more information. So thank you all once again. Thank you to speakers, and a special thank you to moderator Atisha. Thank you so much for facilitating the session. And see you all next week, next Thursday. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye.